Yes, hello friends. This is set number 2. We are going to see the solution for this set. This set is comparatively easy and comparatively hard, but even that, most of the students perform well in this set. Okay, so that good thing. Now, see here, this is your first question in which you have to find out the expression for this voltage. Okay, so first of all, you need to find out the initial current and initial voltage across this inductor and capacitor. So, what is the initial current? Before this switching, this resistance is connected to this circuit, right? So, this capacitor act as open circuit, inductor act as a short circuit for steady condition, right? So 6 plus 2 is 8, and this is a 20 volt supply. So this 20 divided by 8 is nothing but the flow of current in this circuit. So what is the value of this? When you solve it, you will get 2.5. And similarly, if 2.5 ampere of current flowing in this circuit, then what is the voltage across this is nothing but the voltage drop across this resistance, which is equal to total current flowing in the circuit multiplied by resistance, which is nothing but your 2, which is equal to your 5 volt. Now, after switching, this resistance is disconnected from your main circuit, right? So this is your effective circuit. Now, in Laplace domain कैसा दिखेगा आपका सर्किट? This is a step input, right? So 20 by S, resistance is same. इनिशियल करंट आपके पास दिया था करंट, राइट? आपने कैलकुलेट किया, ये 2.5 एम्पियर होता है. सो ड्रॉप यहाँ पे कैसे शो करेंगे? माइनस प्लस इंटू एस एल. एल की वैल्यू कितनी है? 1 है. सो 1 है यहाँ पे, ऐसे ही आएगा खाली. एंड व्हाट इज द ड्रॉप हेयर? एल आई. एल की वैल्यू कितनी है? 1. आई की वैल्यू 2.5. सो दिस इज योर 2.5. दिस इज नथिंग बट योर एल आई, राइट? L for this inductor and I for current, right? Li 0 minus. Okay. Now, what is a voltage drop? This is nothing but your plus minus. For this capacitor is nothing but your V of naught divided by S, which is nothing but your 5 by S, right? And what is the value of capacitor? This 1 by Cs. So 1 by Cs is nothing but your 8 by S. So this is your Laplace domain circuit for this network. Okay, so this is the equivalent Laplace domain circuit. Now you need to find out of this I of S. When you find out this I of S, you can easily find out the drop across this. Means your aim is to find out this voltage, right? This voltage you have to find. But when you convert in Laplace domain, this voltage is appear in this node. So this node is nothing but your V of S. Okay, so you need to calculate this V of S. So what is the value of V of S? V of S is nothing but your V of S is nothing but your, now see, this V of S is, this is your plus and this is your minus, right? So this V of S is nothing but your 5 by S and plus 8 by S into I of S. Okay, so this is a expression for this V of S. Now you have to calculate this I of S. अब ये I of S कैसे calculate करोगे आप? Simple, by using KVL equation, right? So यहाँ पे आपको KVL equation लगाना है in this loop. So आपका equation कैसा हो जाएगा यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे? This is nothing but 20 by S minus 20 by S, because this is minus, this is plus, and this is okay. So current direction is in this side. So element के potential क्या होंगे? Plus minus
प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। सो लगा दो आप यहाँ पे केवीएल। केवीएल जब आप लगाओगे, सो अब देखो ये टर्म के साथ आई ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा, तो मैं आई ऑफ एस को कॉमन ले लेता हूँ और ये टर्म को पूरा एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओके, तो दिस इज योर नथिंग बट योर 6 प्लस एस प्लस 8/s प्लस हो जाएगा ये। अब एक बार में हमने सभी एलिमेंट ले लिए, दूसरी बार में हम सोर्सेस लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। व्हाट इज द फर्स्ट पोटेंशियल इज माइनस, सो दिस इज योर माइनस 2.5। ओके, माइनस 2.5 प्लस 5/s इक्वल टू 0। नाउ सिंपल, आराम से आप पेशेंसली इसको कैलकुलेट करो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आई ऑफ एस, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको आई ऑफ एस मिलेगा 2.5 एस प्लस 15 डिवाइड बाय एस स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 8। ओके, आपको ये फाइनल मिलेगा आई ऑफ एस अगर आप सिंप्लीफाई करोगे। अगर सिंप्लीफाई नहीं करते हो, सो मे बी यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और ये वैल्यू डबल हो जाएंगी। सिंपल है, आप सिंपली जब आप फाइनल स्टेज में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आई ऑफ एस की वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट वी ऑफ एस। सो वी ऑफ एस मिलेगा आपको जब आप ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे। सो जब आप ये पुट कर लोगे, ओके, सो मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको क्या मिलेगा। आपको आपको कुछ इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगा एट द लास्ट। 5s² प्लस 50s प्लस 160 डिवाइड बाय एस प्लस 4 s+2, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a/s b/s प्लस 4 प्लस c/s+2। ओके, नाउ नाउ सी सिंपल लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगाओ यहाँ पे। लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, सो वी ऑफ टी हो जाएगा ये वी ऑफ टी। उसके पहले वी ऑफ टी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर ए प्लस बी e⁻⁻40 प्लस सी e⁻⁻2t। बस ये आपका इक्वेशन बनता है। आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर दो, और आप पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर इसमें रख दो, बाद में लैप्लास इन्वर्स लगाओ, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी आती थी, मैं बता रहा हूँ। ए की वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू इज नथिंग बट यूर 20, बी की वैल्यू हो जाएंगी 5 एंड सी की वैल्यू आपको मिलेगी -20। सो आपका ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, वी ऑफ टी इज नथिंग बट यूर, सी यूनिट से इनपुट से मल्टीप्लाई करना मत भूलते जाओ। ओके, नाउ सी वी ऑफ टी इज नथिंग बट यूर 20 प्लस 5 e⁻⁻40 माइनस 20 e⁻⁻2t u of t। ओके, सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो, आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हो, उसका सिंथेसिस आप कर सकते हो। देखो, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन मीन्स टी टेंस टू इन्फाइनाइट कंडीशन, टी टेंस टू इन्फाइनाइट कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या होगी, ये जीरो हो जाएगा। एट एट t tends to infinite means steady state condition, this becomes 0, this becomes 0. What is the final value is 20, so v of infinite is nothing but your 20। now verify it करो इसको वेरीफाई। एट t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपका ये स्विच तो ओपन हो जाएगा, राइट।
ये स्विच ओपन होगा, सर्किट कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये 20 वोल्ट डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई होगा. सो सी, एट इन्फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम your value is 20 for this voltage. So you do this question is right. Okay, whatever you doing for this question, that's all right. Now we will going to see the next question. I hope this is clear to you. Okay, आपने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है काफ़ी ज़्यादा. काफ़ी स्टूडेंट ने ट्राई तो किया, प्रोसेस तो उनका सही था, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है कहीं ना कहीं. नाउ this is the same question common for both set. So I already explained this question in set number 1. Okay, see the solution, and this is the phasor diagram of this question. Now one question from this set number 2 is time constant. Here you need to find out the time constant. Now see, this is circuit, this is a open switch at t is equal to 0 instant of time. So ये सर्किट तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ब्रांच तो हट जाएगा, ये भी रिडेंडेंट एलिमेंट है, नो यूज ऑफ दिस. ओके, सो दिस इज योर इफेक्टिव सर्किट, राइट. दिस इज योर इफेक्टिव सर्किट, इफेक्टिव सर्किट, इफेक्टिव सर्किट, राइट. सो इफेक्टिव सर्किट ये है आपका. सो नाउ ऑब्जर्व, दिस इज अ, एक ही लूप है यहाँ पे, कहीं से भी करंट कोई भी डायरेक्शन में फ्लो करो, एक ही करंट फ्लो होगा यहाँ पे. सो वन लूप, वन लूप, ओके, वन लूप, एंड दैट्स वाई एक ही लूप है, सिंगल करंट फ्लो, सेम करंट फ्लो. सो दिस इज नथिंग बट योर सीरीज, सीरीज कनेक्शन, सीरीज RLC connection, right? RLC connection. Now what is a equivalent R? R equivalent कितना है यहाँ पे, और यू कैन से R टोटल कितना है. सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, R रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, 4 + 4 8 ओम. इंडक्टर L टोटल कितना है यहाँ पे, 2 + 2 4 हेनरी, एंड कैपेसिटर इज C टोटल इज नथिंग बट योर 1/2 फैरेड. सो ये सीरीज RLC कनेक्शन है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट. सीरीज RLC सर्किट में, सेकेंड ऑर्डर सर्किट में, यू नीड टू नो दैट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड ओमेगा नॉट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज R/2 ऑफ L. पुट करो ये वैल्यू यहाँ पे, आपको मिलेगा 8/8, विच इज नथिंग बट योर 1. सिमिलरली ओमेगा नॉट इज नथिंग बट योर 1/√LC. अब आप इसको पुट करोगे, 1/√4 इंटू 1/2 इज नथिंग बट योर, when you solve it you will get √2. Okay, sorry, you will get 1/√2. Now see, 1/√4 into 1/2, so 1/√2, 1/√2, which is nothing but your 0.707, right. Now observe this, observe here, alpha is greater than of omega naught. So what is the condition, this is your overdamp condition, overdamp condition. So this is your overdamp condition. Now what is a solution, or how to find out the time constant for this overdamp circuit? Simple, dominant pole concept. Time constant is nothing but a 1 upon dominant determinant of dominant pole. So how to find out the dominant pole? पोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोल फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला कह लो, या फिर फॉर्मूला ही कहो, क्योंकि डेरिवेशन तो आप करोगे नहीं. सिंपल, माइनस अल्फा प्लस माइनस √ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओके, दिस इज वैलिड फॉर ओवरडैम कंडीशन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट R/2 ऑफ L. हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, अल्फा की वैल्यू 1 है. ओके, सो -1 प्लस माइनस √ऑफ
वन स्क्वायर माइनस 0.707 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट टू वैल्यू, ओके, और यू कैन से यू विल गेट टू रूट। एक मिलेगा आपको -0.293, दूसरा मिलेगा -1.707। अब क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, जो ज़ीरो के करीब रहेगा वो आपका डोमिनेंट पोल होगा। तो ज़ीरो के करीब कौन सा है, ये, दिस इज़ योर डोमिनेंट पोल। नाउ सी, अगर आप इसको बनाते भी हो तो समहाउ यहाँ पे आपका मिलेगा ये, राइट, एंड ये तो यहाँ पे मिलेगा, एंड कुछ ये यहाँ पे रहेगा। दिस इज योर -1.707 एंड दिस इज योर -0.293। सो दिस इज योर डोमिनेंट पोल। वाई दिस इज योर डोमिनेंट पोल? क्योंकि ये नियर द ओरिजिन है इसलिए ये डोमिनेंट पोल होगा, ओके। ये नियर द ओरिजिन है इसलिए ये डोमिनेंट पोल होगा। दिस इज योर डोमिनेंट पोल, dominant pole. So what is the value of time constant here? Tau is nothing but here 1/0.293। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 3.4129 सेकेंड, ओके। सो दिस इज योर solution for this question. Now third one is, here you need to find out the energy storing element up to 2.5 second, right? energy stored energy stored up to 2.5 सेकेंड, ऐसा ही क्वेश्चन है आई थिंक। लेट मी चेक। यस, एनर्जी स्टोर्ड अप टू 2.5 सेकेंड। हाँ, अब चेक करो यहाँ पे क्या है ये। पहली बात, जब स्विचिंग ऑपरेशन होगा सो आपका सर्किट क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो आपका सोर्स फ्री रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जितना भी सोर्स से जितना भी करंट फ्लो हो रहा वो ये शॉर्ट सर्किट के पास से रिटर्न बैक हो जाएगा, ओके। सो ये आपका सोर्स फ्री सर्किट है। दिस इज योर सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। अब फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर एंड आरसी सर्किट, राइट, आरसी सर्किट है ये आपका। नाउ स्टेट वेरिएबल क्या है इसमें, स्टेट वेरिएबल यहाँ पे देखिए, स्टेट वेरिएबल इज वी, ऑलरेडी गिवन हेयर। अब इसमें सिंपल पार्ट वन में क्या निकालना है आपको, इसको पार्ट वाइज सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मीन्स आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ से प्रोसीड करा जाए। अब पार्ट वन में क्या होगा, बिफोर स्विचिंग मीन्स एट टी इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन टू, बिकॉज आपकी स्विचिंग एट टी इज इक्वल टू टू इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रही है। नाउ यहाँ पे ये डी सी, इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज नथिंग बट योर डी सी स्टेडी स्टेट, this DC steady state condition, ओके। बिकॉज इस ड्यूरेशन में आपका स्विच कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो पहले सिचुएशन था वैसे ही है। सो इस सिचुएशन के लिए जो भी आपका सर्किट है वो स्टेडी स्टेट के जैसे एक्ट करेगा, ओके। सो अगर ये स्टेडी स्टेट के जैसे एक्ट करेगा बिफोर स्विचिंग, सो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, आपका होल करंट इज 6 + 2 100/6 एम्पियर फ्लो करेगा, ओके। सो what is a V naught, or you can say that what is the value of this V here. Now see, what is the value of this V. V is nothing but your total voltage is 100 multi V is, this V is nothing but the drop across this 2 ohm. So 100 into 2 divided by 6, right, ऐसा कुछ होगा। अब इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 100/3 वोल्ट। ये आपको V मिल गया यहाँ पे, ओके, फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड सिचुएशन में क्या है, सेकंड सिचुएशन में आपको सिर्फ
ड्यूरेशन चेंज करना है। सो पार्ट टू में आप क्या निकालोगे यहाँ पे? पार्ट टू में आपको निकालना पड़ेगा एट टी इज इक्वल टू टी ग्रेटर देन टू, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांजिएंट स्टेट। एट दिस कंडीशन दिस इज इन ट्रांजिएंट स्टेट। वी ऑफ टी कितना हो जाएगा? वी ऑफ नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पे एक गलती करोगे आप, वैसे तो किया नहीं है ज़्यादातर, एक या दो को छोड़ के। अब यहाँ पे स्विचिंग कौन से इंस्टेंट पे हो रही है? एट टी इज इक्वल टू टू। सो वो डिले आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। नाउ what is this formula is nothing but your v of t is nothing but your v naught e to the power of माइनस t बाय टाउ, बट यहाँ पे डिले हो रहा है 2 सेकेंड का, सो t माइनस टू डिवाइड बाय टाउ। ओके, टाउ इज नथिंग बट योर टाइम कांस्टेंट। नाउ सी, अब इनिशियल वोल्टेज तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, v ऑफ t इज नथिंग बट योर 100/3 e to the power of माइनस t माइनस टू बाय टाउ। And what is the value of time constant for this? So time constant is nothing but your RC, RC सर्किट है, राइट? सो R की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी? नाउ सी, ये स्विच क्लोज होने के बाद दिस इज योर इफेक्टिव सर्किट, राइट? ये आपका इफेक्टिव सर्किट है स्टेट वेरिएबल वाला। सो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना है? 4, और C इक्विवेलेंट 1 है। सो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट योर 1 सेकेंड। नो, सॉरी, 1 into 4, 4 सेकेंड। 1 into 4 is nothing but your 4 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट आपका 4 सेकेंड है। ओके, नाउ put that value in this equation, you will get the final equation of this vt is nothing but your 100/3 e to the power of डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा? 0.25 t माइनस टू, राइट? ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। आपको दोनों ही एक्सप्रेशन मिले एट t इज इक्वल टू 0 माइनस टू इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एट टी इज इक्वल टू 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? दो इक्वेशन आपको मिल गए, सिंपल। सो वी ऑफ टी इज नथिंग बट योर 100/3 and this is nothing but your 100/3 e to the power of minus 2.5 t minus 2, and this is okay. So this volt and this also volt in volt, because both are voltages. What is the duration of this? 0, t less than of less than equal to of 2, and this is for t greater than 2. Now observe it and put the value of t at t is equal to 2.5, right? सो वी ऑफ टी निकाल लो यहाँ से, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी निकालने के लिए। वी ऑफ टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड के लिए, राइट? 2.5 सेकेंड के लिए आपको निकालना है, राइट? व्हेन यू फाइंड आउट दिस मीन्स टी तो 2.5 है, मीन्स टी से बड़ा है, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। 100/3 ई टू द पावर ऑफ माइनस 2.5, यहाँ पे भी देखो 2.5 माइनस टू। अब इसको सॉल्व करोगे सो आपको मिलेगा 29.416 वोल्ट, 416 वोल्ट। ओके, इतना वैल्यू आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट द, मैंने आपको बताया था, जितने भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है एट फाइनल इंस्टेंट ऑफ टाइम भी आप फॉर्मूले में यूज़ करो तो वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट देगा। ओके, इट मीन्स at EC energy consumed by that capacitor or stored by that capacitor is nothing but your half half CV square, right? कैपेसिटर है इसलिए हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? हाफ CV स्क्वायर।
सो सी, पुट करो वैल्यू इसमें। हाफ सी की वैल्यू कितनी है इसमें? सी की वैल्यू इसमें 1 फैरेड है। एंड वोल्टेज आपने कितना निकाला है? 29.416। ओके, this much voltage for this instant of time. So EC, energy consumed you will when you solve this problem, you will get 432.667 जूल। ओके, इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करता है और स्टोर करता है बाय योर कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ओके, so that much amount of energy is consumed by this capacitor और stored by that capacitor। और वेव फॉर्म कैसे निकलेंगी? सिंपल है वेव फॉर्म, तो काफ़ी इजी है। नाउ सी, दिस इज योर टी। आपने स्विचिंग कब से दिया है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड से, राइट? सो आपका वेव फॉर्म जो डिके होगा वो भी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ही डिके होना चालू करेगा। सो दिस इज योर नथिंग बट योर स्विचिंग टाइम इंस्टेंट, टी इज इक्वल टू 2। एंड व्हाट इज अ इनिशियल वोल्टेज? इनिशियल पे देखो 100/3 मीन्स 33/33 होगा यहाँ पे 100/3। ओके, so this is a waveform which is nothing but your v of t and t। Now see, आई होप सभी क्वेश्चन हो गए। कुछ बाकी हो तो बताओ। वेट, वेट अ मिनट गाइस, लेट आई चेक। ओके, दिस क्वेश्चन विल डू। निकल ले रही क्वेश्चन, राइट? यस, ये भी क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। एंड अच्छा, ये क्वेश्चन बाकी है अभी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बाकी है गाइस। चेक करने दो मुझे, रिकॉर्डिंग हो भी रही है या बस यूं ही मैं लेते। ओके, यस, अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक क्वेश्चन बाकी है। सो हाँ, यहाँ पे देख लेते हो क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट? यही पूछा है उस क्वेश्चन में। यस, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी राइट दैट क्वेश्चन हियर। अगर क्वेश्चन देखो, सो क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पे, प्लस माइनस 100 वोल्ट एट एन एंगल ऑफ 0, 4 ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो इंडक्टर आपका 6 ओम का है एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम का है। 60 एट एन एंगल ऑफ 0। नाउ ऐसा क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड और यू कैन से मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड कैलकुलेट करना है। अब वो मैक्सिमम कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन कब होंगी? नाउ सी, दिस इज अ रेजिस्टिव लोड, वेरिएबल रेजिस्टिव लोड।
रेजिस्टिव लोड। सो ये आपकी स्पेशल कंडीशन है। मैंने पढ़ाया था आपको एसी थ्योरम में, एसी पावर ट्रांसफर थ्योरम में। वेरिएबल रेजिस्टिव लोड है यहाँ पे। अगर जेड टी एच होता, सो आप जो एडमिटेंस, जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, मीन्स रिएक्टिव पावर को आप कंपनसेट कर सकते, बैलेंस कर सकते थे। बट यहाँ पे रेजिस्टिव टर्म होने की वजह से आप उसे बैलेंस नहीं कर सकते। ओके, सो कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ मैं। स्टेप वन यहाँ पे क्या होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस, यू कैन से जेड टी एच। फाइंड फाइंड जेड टी एच। जेड टी एच कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। ओके, यहाँ से जेड टी एच आएगा बाय बाय रिमूविंग वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब इसको रेजिस्टेंस को ओपन कर देना है। ये आपका टारगेट टर्मिनल है, दिस इज योर टारगेट टर्मिनल, टारगेट टर्मिनल। ओके, इसके रिस्पेक्ट में आपको जेड टी एच वी टी एच फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब यहाँ से जेड टी एच जब आप फाइंड आउट करोगे, सो आपको जेड टी एच कितना मिलेगा? यहाँ पे जेड टी एच आपको मिल जाएगा 2.98 एट एन एंगल ऑफ 26.57। ओके, जब आप जेड टी एच फाइंड आउट करोगे, अब देखो जेड टी एच आपने फाइंड आउट किया, आपके पास वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे आपको आर एल की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा? मॉड ऑफ जेड टी एच। बिकॉज आप क्या फेस तो इसमें बैलेंस नहीं कर सकते हो, सो दैट्स वाई लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा? इतनी। जब क्योंकि ये वेरिएबल है, यू कैन एडजस्ट इट फॉर कंज्यूमिंग, फॉर ट्रांसफरिंग मैक्सिमम पावर टू दिस लोड। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए आप आर एल की वैल्यू कितनी सेट करोगे? मॉड ऑफ दिस जेड टी एच। तो जब आप इसको देखोगे, so this mod is nothing but your magnitude of this ZTH, which is equal to 2.98। अब 2.98 वैल्यू आप इसकी ओम में रखोगे। ओके, ओम में रखोगे इसकी, बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस। 2.98, 2.98 की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है फॉर दिस सर्किट। ओके, फॉर दिस सर्किट। नाउ एक बार आपने ये वैल्यू रख दी इन दिस सर्किट में, देन यू हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट। सो आपका सर्किट फिर से ड्रॉ होगा यहाँ पे, और वहाँ पे आपको दिस, यहाँ पे आपको, सॉरी, अब आपको यहाँ पे पूरा सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जेड टी एच तो निकाल लिया है। एक काम करना है, यहाँ पे वी टी एच भी निकालना है यहाँ से। ओके, वी टी एच ऑल्सो फाइंड आउट, स्टेप टू। ये स्टेप वन हो जाएगा। स्टेप टू में आपको यहाँ पे वी टी एच भी फाइंड आउट करो यहाँ से। स्टेप टू में वी टी एच फाइंड आउट करो, फाइंड वी टी एच, फाइंड वी टी एच। एंड फिर स्टेप थ्री में थेवेनिन्स थ्योरम लगा दो। स्टेप थ्री में कैसे लगाओगे आप? नाउ सी, यहाँ पे आपका वी टी एच आएगा, यहाँ पे जेड टी एच आएगा। ओके, जेड टी एच, और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा। लोड रेजिस्टेंस कितना है आपका? वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस इज आर, आर एल। आर एल की वैल्यू कितनी है? ये। ओके, अब ये 2.98 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। सो करंट कितना फ्लो करेंगे यहाँ से, आपको वो फाइंड करो। पहले तो वो फाइंड करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट। और पावर कंज्यूम के लिए आई स्क्वायर आर लगा देना फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैसे फाइंड आउट करोगे? वी टी एच डिवाइड बाय जेड टी एच प्लस 2.98। ओके, सो वी टी एच की वैल्यू कितनी आती है? जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको वी टी एच मिलेगा 87.68 एट एन एंगल ऑफ 8.746 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करने के बाद, जेड टी एस तो बता दिया ना मैं,
इनको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 5.646 प्लस 4/3 जे। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखूँ सो ये हो जाएगा आपका 15.1149, एंड फेज एंगल इसका हो जाएगा -4.5411। ओके, इतना करंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। बट पावर कंज्यूम के लिए हमें एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। सो पावर कंज्यूम बाय दैट रेजिस्टेंस, पावर consume or you can say power delivered to that resistance is nothing but your I square R। so I square R कितना है? I square में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, 15.1149 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2.98, राइट, 2.98 है। सो इसका कैलकुलेशन बताऊँ मैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आपको मिलेगा 680.81 and at an angle of 9.082। So this is the answer for all the question of this set। Okay, comparatively this set is very hard। Okay, ये सेट थोड़ा हार्ड था, मीन्स इसमें काफ़ी टफ कैलकुलेशन था, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन था। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट ने इसको काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस सेट में। ओके, एवरेज मार्क्स नियर अबाउट 10 के करीब है। फर्स्ट सेट से बात किया जाए तो ये सेट थोड़ा टफर साइड था, बट स्टिल स्टूडेंट परफॉर्म वेल। सो दैट्स इट।